काबीना करेगी गौर। राज्यसभा में फिर स्पेशल स्टेटस की गूंज, 10% इजाफा इमदाद से ही काम चलाना होगा, खुसूसी मौक़िफ़ नहीं मिलेगा, मरकजी वजीर का बयान। YSCP ने साबिक़ वज़ीर आज़म के वादे को दिलाया याद, विजय साई रेड्डी ने AP को खुसूसी मौक़िफ़ देने का किया मुतालबा। कुलभूषण को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, सुषमा का ऐलान। पाकिस्तान के सजाए मौत के ऐलान की पार्लियामेंट ने की मजम्मत। और अब तफसील। वज़ीर आला KCR से BC कमीशन के अराकीन ने मुलाकात की और मुस्लिम अक़लियतों व ST तबके के रिजर्वेशन से मुतालिक वज़ीर आला को रिपोर्ट सौंप दी। कल काबीना के इजलास में BC कमीशन की रिपोर्ट पर तबादिले ख्याल किया जाएगा। रिजर्वेशन से मुतालिक मबाहिस के लिए 16 अप्रैल को असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। इसी ज़िम्मन में वज़ीर आला KCR ने गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात की ताकि असम्बली का खुसूसी इजलास तलब किया जाए। इसके अलावा गवर्नर कोटा से MNC उम्मीदवारों की नामजदगी पर भी तबादिले ख्याल किए जाने की खबर है। राज्यसभा में आज स्पेशल स्टेटस की गूंज सुनाई दी। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अरकान राज्यसभा ने कौमी तरक्याती कौंसिल का इजलास तलब करके स्पेशल स्टेटस के बारे में तबादिले ख्याल करने की मांग की। अपोजिशन ने ऐवान में किए गए साबिक़ वज़ीर आज़म के वादे को पूरा करने का मुतालबा किया। वज़ीर राव इंद्रजीत के जवाब से अदम मुतमईन कांग्रेस के अरकान ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। अरे उनको बुझाने तो फिर बोलने देना। और नहीं बोलूंगा तो उनको you continue you can continue. So there is continue and finish. There is a saying. There is a saying. No, please. There is a saying. You're going on record. There is a saying. There is a saying in English, sir. वॉकआउट से पहले कांग्रेस MP KVP रामचंद्र राव ने राज्यसभा में AP को खुसूसी मौक़िफ़ का मुतालबा किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि मनसूबाबंदी कमीशन ने खुसूसी मौक़िफ़ की मुखालिफत नहीं की। इस बारे में उन्होंने इजलास बुलाकर जामा मुबाहिस करने का मुतालबा किया। The Finance Commission recommendations are only a reason being portrayed to deny special category status to AP, sir. Sir, factually the 14th Finance Commission submitted its report on December 2014, and the government has placed it, and the NDA government was formed in May 2014, and the bill was placed before the Parliament in February 2015. Sir, I am asking the government, what stopped the government in giving special category status to AP between May 2014 and March 2015. Sir, in these 9 months, they should have taken a decision to give the special category status as promised by the Prime Minister then. YSCP के रुकन विजय साई रेड्डी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग करते हुए 3 सवालात पर वजाहत मांगी। विजय साई रेड्डी ने कहा कि राज्यसभा के इस ऐवान में साबिक़ वज़ीर आज़म ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया था और उस वादे को पूरा करने की जरूरत है। Given by the minister is factually incorrect and is quite misleading. Sir, I draw the attention of your attention for the last paragraph of the statement. Accordingly, the issue of grant of special category status of the states has been taken care of with the implementation of the recommendation of the 14th Finance Commission. Sir, What is there? Deputy Chairman, sir. Yeah, okay. Sir, the 14th Finance Commission, in fact, he has reproduced the recommendation of the 14th Finance Commission recommendation, and 14th Finance Commission has merely stated that there is no distinction, it has not made any distinction between the special category states and other states in so far as revenue deficit, post-devolution revenue deficit grants are concerned. That is what they have merely stated. I really don't know whether the concerned minister has rightly understood or not. To the best of my knowledge, it is only a recommendation, and by implementing this recommendation,
the government is not doing any justice to the state of Andhra Pradesh, sir. I'll explain. See, my first question, sir, I have 3 questions to be put. My first question is, it is to the House, sir. Probably Secretary General has to address it. The assurance that has been given by the then Honorable Prime Minister of India has been taken note of as an assurance on this floor of the House given to the members. Whether it has been recorded as an assurance or not. No, that question is not permitted. You ask the question only to the Minister. That is the assurance. तेलंगाना के अरकान भी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के हामी हैं। टीआरएस के रुकन के केशव राव ने कहा कि फाइनेंस कमीशन ने कभी भी स्पेशल स्टेटस की मुखालिफत नहीं की है। Is what happened in the House here, which is a part of the bill. A decision has been given to the chair that what was discussed and what was promised by Prime Minister of the day on the floor of this House to the continuation, when people asked, can it be brought codified as one of the clauses? He said, no, the Prime Minister's assurance is well. So the attention we are drawing you is, this House has passed some kind of an opinion or kind of an act which has to be implemented. Now you have brought in what is known as now the 14th Finance Commission. If I have to believe your 14th Finance Commission, according to the statement, the 14th Finance Commission chairman, a good friend of mine, Y.V. Reddy, tells us in Hyderabad, in open meeting, that we have never recommended that the special category should be cancelled. Because I was sharing the platform with him on that day, we tried to find out the difference, subtleties. मरकजी वजीर मनसूबा बंदी राव इंद्रजीत सिंह ने एपी को खुसूसी मौक़िफ़ के अरकान पार्लियामेंट के मुतालबे पर ऐवान में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खुसूसी मौक़िफ़ के लिए एनडीसी से कोई मंजूरी हासिल नहीं की गई। इसके अलावा जिन रियासतों में खसारा आमदनी हो रहा है, जिनमें एपी भी शामिल है, इसे 10% इजाफी मुआशी इमदाद दिए जाने का मरकजी वजीर ने दावा किया और वाज़ेह अंदाज में कहा कि हुकूमत के पास एपी को खुसूसी मौक़िफ़ फराहम करने का कोई मनसूबा नहीं है। The NDC has endorsed and approved all the previous 11 special category states, period. And that conforms to what he's saying. What I'm saying is that, that regarding Andhra Pradesh, there was no approval, no endorsement by the NDC. The Finance Commission, the 14th Finance Commission, decided to give revenue deficit grant. Please sit down. Which were not special category states, like Andhra Pradesh, like West Bengal, like Kerala. These states were not special category states, but they were given revenue deficit grants by the Finance Commission because they thought that the fund that these states are able to collect are not enough for their development. The states have got 10% extra devolution by virtue of the 14th Finance Commission, which all told comes to an increase of 1.78 lakh crore rupees per year. Category status, I would suggest that they should go ahead in their respective states and ensure that the states listen to the reply and then say, and develop their states, without listening to the reply, and develop their state by virtue of this extra 1.78 lakh. Without listening to the reply, you are walking out. I don't know why. Come out of the Planning Commission. And at present, sir, there is no proposal for any special category status to be granted to any state. Okay. No. पार्लियामेंट ने आज एक आवाज़ में हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव को फांसी की सज़ा देने के पाकिस्तान के ऐलान की मजम्मत की और हुकूमत से कुलभूषण को बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की मांग की। कांग्रेस कायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे इल्ज़ाम लगाकर कुलभूषण के खिलाफ मौत की सज़ा का ऐलान किया। उन्होंने कुलभूषण को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश का मुतालबा किया और कहा कि अगर पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी देता है तो ये कत्ल समझा जाएगा और हुकूमत कुलभूषण को बचाने में नाकाम होती है तो ये उसकी कमजोरी समझी जाएगी। मामले में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं किया। भारत ने जाधव को वकील मुहैया कराने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने इसे इनकार कर दिया। पाकिस्तान यदि कुलभूषण को फांसी पर लटकाता है तो भारत इसे एक हत्या ही समझना चाहिए और उसी तरह रिएक्ट करने की इनमें ताकत भी होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपसे
माध्यम से उनको अपील करता हूं, आप हमेशा जाकर बगैर इनविटेशन से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बच्ची के शादी में जाते हो, क्या इसके बारे में आप बातचीत नहीं कर सकते थे? क्या डायरेक्टली मिल नहीं सकते थे? क्या टेलीफोन पे आप बात नहीं कर सकते थे? और क्या आपके एक्सटर्नल सभी लोग मिलकर इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए, और इनको अगर नहीं बचाएंगे मैं ये समझूंगा ये सरकार की कमजोरी होगी और भारत की कमजोरी। पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने कुलभूषण मामले को सियासी रंग न देने का मशवरा दिया। राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, आप वही पार्टीशन होकर के देखिए, वो जादव के साथ हम सब है, वो जादव के साथ हम सब है, पूरा हाउस है जादव के साथ। बैठिए ना, वो तो मना नहीं करे। आसद अवैसी ने कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए आलमी दबाव बनाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि हुकूमत को बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, काउंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है, जहां पर बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने फैसला दिया है। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और मैं यहां पर सियासत नहीं कर रहा हूं, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज्जत शहरी है और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। मैडम, मैं फिर से मुतालबा करता हूं कि इसकी जान बचाई जाए, सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, चाहे वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो, और उसको वापस लाने की पूरी कोशिश करे। जयप्रकाश जी। ऑल इंडिया मुत्तहिदा जमहूरी महाज के सदर बदरुद्दीन अजमल के फर्जंद रुकने पार्लिमान सिराजुद्दीन अजमल ने भी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट की जानिब से मौत की सजा की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी दरपर्दा साजिशों पर पर्दा डालने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है और पाकिस्तान को मुनासिब सबक सिखाने की जरूरत है। The government of Na Pakistan should get a very clear message that there are 125 crores Kulbhushan in this country, and we are not going to take this lying down, because this is going to be the beginning of their oppressive measures, and Pakistan has been carrying out many terrorist activities, and this is the first time we have got official proof. I think we should nail them. वहीं बिहार के कटिहार एनसीपी से ताल्लुक़ रखने वाले एमपी तारिक अनवर ने जाधव को पाकिस्तान की जानिब से कानूनी चाराजोई का हक फराहम न करने पर शदीद बरहमी जाहिर की और बैनुल अक़वामी असर और रसूख का इस्तेमाल करके जाधव को जिंदा हिंदुस्तान वापस लाने की कोशिश करने का हुकूमत से मुतालबा किया। मांग करते हैं कि इसके खिलाफ भारत सरकार सख्त कदम उठाए, अगर ज़रूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे देश की भावना इससे जुड़ी हुई है। और बस वो क्या मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी नापाक इरादों को या नापाक कार्यों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह का कदम उसने उठाया है, इसलिए इसका विरोध पूरी ताकत के साथ होना चाहिए, कठोर विरोध होना चाहिए। बीजेपी के रुकन अनुराग शर्मा ने कहा कि कुलभूषण जाधव की तायद में पूरी लोकसभा खड़ी है और वो पाकिस्तान के सजाए मौत के ऐलान की मजम्मत करते हैं। सदन के सदस्यों ने इस विषय को लेकर, आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान की हरकतों को लेकर एकजुटता दिखाई है। इकट्ठे मिलकर हमने यहाँ से रेजोल्यूशन पास किया है, चाहे वो कश्मीर की बात हो या पीओके की बात हो, चाहे सरबजीत सिंह की बात हो या चमेल सिंह की बात हो, सदा भारतीय सांसद और ये सदन इकट्ठा नजर आया है। आज एक बार फिर इकट्ठा नजर आना चाहिए। 125 करोड़ भारतीयों की आवाज पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया भर में जाए कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और इस तरह की हरकतों को हम मंजूर नहीं करेंगे, और इसके लिए एक स्पष्ट संकेत पूरी दुनिया में जाए। ऐसा एक रेजोल्यूशन की मैं यहाँ पर आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ।
हिंदुस्तान कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये ऐलान वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने लोकसभा में किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को सजा देने के मामले में कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों की खिलाफवर्जी की है। भारतीय हाई कमीशन ने बार बार पाकिस्तान से भी अनुरोध किया था कि हमको काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, लेकिन बार बार भारतीय हाई कमीशन के द्वारा जो है अनुरोध किए जाने के बावजूद काउंसलर एक्सेस जो दी जानी चाहिए थी वह काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई है। और भारत पाकिस्तान द्वारा बगैर काउंसलर एक्सेस के इस सेंटेंस को मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदया, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि जाधव को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वजीर खारजा ने कहा कि जाधव सारे हिंदुस्तान का बेटा है और अगर इस मामले पर जरूरत पड़े तो शरारती सतह पर भी नुमाइंदगी की जाएगी और जाधव को बचाया जाएगा। सुषमा स्वराज ने आज राज्यसभा में जाधव मामले पर बयान दिया। हमसे पूछा है मदद करने की बात, ये तो बहुत छोटी बात आपने कही। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो बड़े से बड़ा वकील, लेकिन केवल सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं, जिस दिन से ये घटना घटी है तब से लेकर लगातार मैं उनके लोगों के संपर्क में हूँ, उनके माता पिता के संपर्क में हूँ। 3 बार उन्हें यहाँ मिल चुकी हूँ, कम से कम 6 बार उनसे फोन पे बात कर चुकी हूँ। और अभी इस घटना से पहले कोई संयोग था, पिछले मंगलवार दिन, सोमवार और मंगलवार दोनों दिन मैं उनसे यहाँ मिली हूँ। इसलिए हम लोग बिल्कुल संपर्क में हैं। ये विषय पूरे, अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी न किसी तरह से इस जाधव को। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की जानिब से मौत का परवाना जारी करने के खिलाफ हिंदुस्तान में एहतजाज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान की जानिब से बिना सबूत की एक तरफा कार्रवाई की मजम्मत करते हुए बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया। हाथों में प्लेकार्ड थामे हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और कुलभूषण को सलामती के साथ रिहा करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हैदराबाद के 2 मजहबी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। शिया मुसलमानों के मजहबी जुलूस और हनुमान जयंती जुलूस के पेश नज़र सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने सिक्योरिटी इंतजाम पर मीडिया से बात की। సిటీ పోలీస్ కమిషనర్ గారు వాళ్ళ అంజుమన్స్ మహమ్మద్ ప్రాఫెట్ అల్లుడు హజరత్ అలీ జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు పాతబస్తీ, సైబరాబాదు, రాచకొండ కమిషనరేట్ నుంచి మౌలాలి వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ తిరిగి వస్తారు. వాళ్ళకి కాంట్రడిక్షన్, ఓవర్లాపింగ్ జరగకుండా, కన్ఫ్రంటేషన్ జరగకుండా ఆల్రెడీ కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్లో వాళ్ళు ఒక 2 అవర్స్ లేట్గా స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు. 6 గంటలకి బయలుదేరతారు. వెళ్ళేటప్పుడు ఎటువంటి ఓవర్లాపింగ్ జరగదు. వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి కన్ఫ్రంటేషన్ జరగకుండా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, నారాయణగూడ, ఎక్స్ రోడ్స్ ఆ ఏరియాలో కన్ఫ్రంట్ జరగకుండా ఎక్కడికక్కడే పికెట్లతో పాటు క్యూఆర్టీ టీములు కూడా పెట్టడం జరిగింది। एपी हुकूमत को मरकज की जानिब से झटका लगा। मरकज ने वाजे कर दिया कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर का तखमीना अगर अप्रैल 2014 के तखमीने से बढ़ गया तो इजाफा शुदा बजट मरकज अदा नहीं करेगा। ये बोझ रियासत को ही उठाना पड़ेगा। राज्यसभा में कांग्रेस एमपी
केवीपी रामचंद्र राव की जानिब से तहरीरी तौर पर पूछे गए सवाल के जवाब में मरकजी वजीर आबी वसाइल उमा भारती ने ऐवान में जवाब दिया। 30 सितंबर 2016 को मरकजी वजारत फाइनेंस की जानिब से जारी करदा हिदायत के मुताबिक 1 अप्रैल 2014 से पुलावरम से खेतों की सैराबी के लिए प्रोजेक्ट पर होने वाला 100% खर्च मरकज ही उठाएगा। ये खर्च इसी दिन तक के लिए सैराबी प्रोजेक्ट के लिए महदूद है। अप्रैल 2014 से कीमतों में इजाफे के हवाले से प्रोजेक्ट की तामीर के बजट में इजाफे का बोझ एपी रियासती हुकूमत को ही उठाना पड़ेगा। वासर कांग्रेस पार्टी की जानिब से आंजुहानी समाजी जहद का ज्योतिराव फूले की 151वीं यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। फूले के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन एस रामकृष्ण रेड्डी, भूमना करुणाकर रेड्डी, उता प्रताप रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। याद रहे कि ज्योतिराव फूले ने पसमानदा तबका और खवातीन की तालीम व तरक्की के लिए जद्दोजहद की थी। गुंटूर जिले के मंगलगिरी बल्दी हल्के नंबर 31 में ज़िमनी इंतखाब में वासर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। वासर कांग्रेस के उम्मीदवार एम वेंकट रमना ने तेलुगुदेशम के करीबी हरीफ पर 182 वोटों से जीत हासिल की। नतीजे के ऐलान के साथ ही वासर कांग्रेस के खैमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया। मंगलगिरी के इहाते के इलाके को सदर मकाम का हिस्सा करार दिए जाने के बाद ये पहला इंतखाब है। पार्टी की जीत से कारकुनों में एक नया जोश भर गया है। मंगलगिरी एमएलए आला रामकृष्ण रेड्डी ने दावा किया कि आने वाले हर इंतखाब में वासर कांग्रेस शानदार जीत दर्ज करेगी। ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి జిమ్ రమణ గారిని గెలిపించినందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం మీద చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క మోసపూరితమైనటువంటి అబద్ధపు వాగ్దానాల మీద విసుగు చెందినటువంటి ప్రజలు జగనన్న నాయకత్వం మీద నమ్మకం ఉంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే మాకు కాబోయే ముఖ్యమంత్రి అని భావిస్తూ ఇచ్చిన ఈ తీర్పుని మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ 31వ వార్డు ప్రజలందరికీ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం। जिले कृष्णा के गुरीवारा बल्दी इंतखाबात में तेलुगुदेशम की जीत का जश्न तसादों में बदल गया। जीत के जश्न के दौरान तेलुगुदेशम और वासर कांग्रेस के कारकुनों का टकराव हो गया, जिससे हालात कुछ देर के लिए कशीदा हो गए थे। मुकामी तेलुगुदेशम कायदीन ने शहर में फतेह जुलूस निकाला और खूब पटाखे फोड़े गए। इसी वक्त वासर कांग्रेस के एमएलए कोटाली नानी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें तेलुगुदेशम अराकीन ने रखना डालने की कोशिश की, जिसके सबब दोनों ग्रुप में तसादुम की कैफियत पैदा हो गई। पुलिस ने फौरी मैदान में उतरकर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करके हालात को काबू में कर लिया। हैदराबाद में जीएचएमसी की जानिब से होटलों पर धावों का सिलसिला जारी है। शहर में आज भी जीएचएमसी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर होटलों में धावे किए गए और सफाई के नाक़िस इंतजामात करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की गई। रॉयल पैलेस होटल में भी कार्रवाई की गई और इस होटल में 20,000 का जुर्माना लगाया गया। 10-15 హోటళ్ళ మీద ఏదైతే బల్క్లో మీట్ బిర్యానీ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారో వాటిని ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇది మీట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడు స్టాంపుడ్ మీట్ తీసుకోవాలి। ఇది ఓన్లీ జిహెచ్ఎంసీ 3 పర్మిటెడ్ స్లాటర్ హౌస్ నుంచి వాళ్ళు పర్చేజ్ చేయాలి। ఓన్లీ స్టాంపుడ్ మీటే ఉండాలి। ఎందుకంటే వీళ్ళు అన్హైజీనిక్ కండిషన్లో స్లాటర్ హౌస్ నుంచి తీసుకొచ్చి సప్లై చేస్తున్నారు। అది ప్రజల ఆరోగ్యానికి ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు। అందుకోసమే మా కమిషనర్ సార్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం సీరియస్గా ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాం। మా జోనల్ కమిషనర్ గారి ఆధ్వర్యంలో జిహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్లో ఉన్నటువంటి హోటల్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ మెయింటైన్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మేము సఫిషియెంట్గా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసామండి। ఇప్పటికీ జోనల్ కమిషనర్ గారి ఆధ్వర్యంలో 2 మీటింగ్లు పెట్టాం। మా మెడికల్ ఆఫీసర్సు, ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, మా వెటర్నరీ ఆఫీసర్సు అందరం కలిసి వాళ్ళకి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్లో ఏ విధంగా హోటల్ క్లీన్లీనెస్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏ యాక్షన్ తీసుకుంటాము మీరు మెయింటైన్ చేయకపోతే అన్నది పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అందరికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగిన తర్వాత హోటల్స్ అసోసియేషన్లు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసాం మేము। ఆ రోజు అందరికీ అవగాహన వచ్చింది। ఇప్పుడు మేము ఫీల్డ్లో మా మెడికల్ ఆఫీసర్స్, ట్రేడ్ లైసెన్సింగ్ వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా, వాటర్ బోర్డ్ ఆఫీసర్స్, మా వెటర్నరీ ఆఫీసర్లు, నేను ఏడీ వెటర్నరీ అందరం కలిసి మేము కామన్గా వీటన్నింటి సంయుక్తంగా దాడులు నిర్వహిస్తున్నాం। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
रिजर्वेशन से मुतालिक रिपोर्ट को बीसी कमीशन ने हवाले की केसीआर को। रिपोर्ट पर कल तेलंगाना काबीना करेगी गौर। राज्यसभा में फिर स्पेशल स्टेटस की गूंज। 10% इजाफा इमदाद से ही काम चलाना होगा, खुसूसी मौक़िफ़ नहीं मिलेगा, मरकजी वजीर का बयान। वाससीबी ने साबिक वजीर आजम के वादे को दिलाया याद। विजय साई रेड्डी ने एपी को खुसूसी मौक़िफ़ देने का किया मुतालबा। कुलभूषण को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, सुषमा का ऐलान। पाकिस्तान की सजाए मौत के ऐलान की पार्लियामेंट ने की मजम्मत। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।